السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جی جناب میں جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نوائز کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں, لیکن فی الحال یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کوشش ہوتی ہے میری کہ میں پرسکون ماحول میں ہی ریکارڈنگ کروں, لیکن فی الحال یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی طرح سے. اور سب سے زیادہ آپ کو یہ مٹھو کی ہی چیخو پکار سنائی دے گی. بڑھتے ہیں کہانی کی جانب, جس کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے. کہانی کا نام ہے دست کوزہ گر, مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین. قسط نمبر 32. اتنے دنوں بعد اچانک رومیلا کو اپنے سامنے, اور وہ بھی یونیورسٹی میں, دیکھ کر نمل اور سنبل دونوں خوشی سے چیخ پڑیں اور دوڑ کر اس کے گلے جا لگیں. کتنی ہی دیر وہ تینوں ایک دوسرے سے لگی جانے کیا کیا بولتی رہیں. آخر کافی دیر بعد جب ان کے جذبات قابو میں آئے, تب وہ تینوں ایک جگہ بیٹھ کر سکون سے بات کرنے لگی. زیادہ تر رومیلا ہی بول رہی تھی, وہ دونوں بڑے انہماک سے سن رہی تھی جو وہ کہہ رہی تھی. بس کل رات تم سے بات کرنے کے بعد میں نے آج صبح ہی آلیان سے یونیورسٹی کا ذکر کیا تو انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ مجھے یونیورسٹی چلے جانے کو کہہ دیا. میں تو سوچ رہی تھی کہ کل سے جاؤں گی, مگر جب انہوں نے کہا کہ آج کا دن کیوں ضائع کر رہی ہو تو میں آج سے ہی آ گئی. تو کیا تمہاری ساس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تمہارے جانے پر؟ سنبل نے پوچھا تو نمل بھی بے ساختہ بولی, وہ بھی گھر کی گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ. نہیں, میرے سامنے تو نہیں کیا. اصل میں آلیان نے انہیں ضرور کچھ سمجھایا ہوگا, انہوں نے پہلے سے گراؤنڈ بنا رکھا ہوگا, تبھی یہ سب ہوا ہے. اب کیا بات ہوئی ہے یہ پوچھنے کا موقع ملے گا تو بتاؤں گی. صبح میں تو آلیان بہت جلدی میں ہوتے ہیں, رومیلا نے کہا. تو یہ آلیان بھائی تمہیں اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں, کیا ابرار بھائی کے ڈر سے؟ نمل نے تعجب سے کہا. سچ پوچھو تو یہ بات خود مجھے حیران کر رہی ہے. آلیان کا رویہ تو بہت اچھا ہے میرے ساتھ, وہ یہ سب کسی بلیک میلنگ کے ڈر سے نہیں کرتے, البتہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ سب کر رہے ہیں, رومیلا نے پرسوچ انداز میں کہا. کہیں انہیں تم سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ سنبل نے شوخی سے کہا تو رومیلا بھی ساختہ ہنس پڑی. پلیز سنبل, مذاق میں بھی ایسی بات مت کرو, نمل نے فوراً ٹوکا تو رومیلا کچھ ٹھٹک کر نمل کو دیکھنے لگی جو بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. زیادہ خوش فہمیوں کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں. ایسی دھوکے بازی سے کی گئی شادیوں میں محبت بھی نہیں ہوتی, صرف سمجھوتا ہوتا ہے. یا تو آلیان بھائی میں انسانیت ہے اس لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں, یا پھر انہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے بھائی سے ان لوگوں کے رویے کی شکایت نہ کر دو اور وہ اشتعال میں آ کر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائیں. نمل نے صاف گوئی سے کہا تو رومیلا تو کچھ نہیں بولی, البتہ سنبل ضرور کہنے لگی. تم ہر بات کو اتنا منفی کیوں لیتی ہو؟ اچھی امید رکھنا خوش فہمی نہیں ہے, اور اس شادی میں دھوکے بازی ابرار بھائی نے کی ہے, رومیلا نے نہیں. ہو سکتا ہے آلیان بھائی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہو, اس لیے وہ رومیلا کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ خدا نخواستہ اگر اس شادی کا کوئی برا انجام ہو تو رومیلا اتنی بری طرح نہ بکھرے کہ سنبھل نہ سکے. نمل نے رومیلا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا. صرف نمل کی بات سن کر ہی رومیلا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. اگر واقعی نمل کی بات کل کو سچ ہو گئی تو رومیلا کی کیا حالت ہوگی؟ سنبل یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی. تھوڑی دیر کے لیے ان تینوں کے درمیان خاموشی چھا گئی جسے نمل نے ہی توڑا. ویسے ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہے, فائنلی ہم تینوں میں سے کسی کو تو محبت ہوئی. نمل کی بات پر سنبل بڑے زور سے ہنسی, جبکہ رومیلا اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولی. کس نے کہا تم سے کہ مجھے آلیان سے محبت ہو گئی ہے؟ اب کی بار تو نمل بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی. میں نے تمہارا نام کب لیا؟ ہو سکتا ہے میں اپنی یا سنبل کی بات کر رہی ہوں. رومیلا اپنی جلد بازی پر کچھ خجل سی ہو کر کہنے لگی. تم لوگوں کے چہرے پر لکھا ہے, نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح تمہارے بھی چہرے پر لکھا ہے, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. سنبل برجستہ بولی تو رومیلا نہ چاہتے ہوئے بھی جھیپ گئی. نمل کو اس کا یہ روپ بہت پیارا لگا. وہ بے اختیار اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو ہو گئی. یار ہمیں بھی ذرا آلیان بھائی سے شرف ملاقات بخش دو, اب تک ہماری ان سے ڈھنگ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. سنبل نے مسکین سی شکل بنائی. کوشش کروں گی, وعدہ تو نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنے گھر تم لوگوں کو انوائٹ نہیں کر سکتی. تم دونوں آ بھی جاؤ تو آلیان گھر والوں کے سامنے ریزرو ہی رہیں گے, لہٰذا فی الحال صرف صبر کرو. رومیلا بڑی صاف گوئی سے بولی تو سنبل بھی سر ہلا کر رہ گئی, مگر کچھ دیر بعد ان تینوں کو ہی بڑی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب رومیلا کے موبائل پر آلیان کا فون آیا کہ وہ اس کی یونیورسٹی آ رہا ہے, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر آ جائے. ارے تم پوچھتی تو کیوں آ رہا ہے؟ سنبل نے رومیلا کے حیرانی سے بتانے پر اس سے بھی زیادہ حیرانی سے کہا. اب یہ پوچھنا تو کچھ اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں, رومیلا نے بے چارگی سے کہا. پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, آنے پر پتہ چل جائے گا, نمل نے اطمینان سے کہا, اور پھر آلیان کی مسڈ کال پاتے ہی وہ ان دونوں کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے باہر آ گئی.
आलियान तब तक गाड़ी पार्क करके उनके इंतज़ार में खड़ा था। वह ऑफिस से उठकर आ रहा था, इस लिहाज से उसकी ड्रेसिंग भी वैसी ही थी। सुरमई रंग की पैंट और कोट पर लाइट आसमानी शर्ट और सुरमई टाई लगाए, आंखों पर बेशकीमत सनग्लासेस चढ़ाए वह दूर से ही नुमाया हो रहा था। फाओ, मुझे लगता है वो यहाँ की लड़कियों को अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी से मुतासिर करने आए हैं, सुंबल ने सताइशी अंदाज में कहते हुए होंठों को सीटी बजाने वाले अंदाज में गोल कर लिया। तो रोमेला सिर्फ उसे देख कर रह गई, बोली इसलिए नहीं कि उन पर नज़र पड़ते ही आलियान ने उनकी जानिब कदम बढ़ा दिए थे। करीब आने पर आलियान ने चश्मा उतारते हुए उन सबको सलाम किया तो रोमेला ने जवाब देने के साथ ही उन दोनों का भी तारुफ करा दिया और पूछने लगी, सब खैरियत तो है ना, आप इस वक्त यहाँ? रोमेला खासी हैरान थी, तभी खुद पर जब्त ना कर सकी और फौरन ही पूछ लिया। खुद आलियान के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं था जो इधर उधर की बातों में ज़ाया करता। वो भी फ़ौरन कहने लगा, असल में तो मैं यहाँ नमल से मिलने आया हूँ, बशर्त ये कि नमल के पास टाइम हो सुकून से बैठकर बात करने का। आलिया ने बराह रास्त नमल को देखते हुए कहा, हाँ टाइम तो है, लेकिन बात क्या है? नमल ने ये नहीं कहा कि जब से रोमेला आई है हम सिर्फ बातें ही तो कर रहे हैं, कहीं बैठकर बात ना कर लें? आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो नमल बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर कुछ देर बाद वो चारों कैंटीन में मौजूद थे। आलिया नमल से गुलफाम के बारे में बात करने आया था। नमल ने कुछ हिचकिचाते हुए रोमेला को देखा, फिर उसका इशारा पाकर सब कुछ सच सच बता दिया। आलियन अबरार भाई और गुलफाम के घर और ऑफिस का पता लेना चाहता था, मगर वो नमल को ज़ुबानी याद नहीं था। चुनाचे वो उसने टेक्स्ट कर देने का वादा करते हुए पूछा, आप उन सब के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्यों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? आलियन ने चाय का सिप लेते हुए उल्टा उसी से पूछा। मगर आप उन लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानून है ही नहीं। कोर्ट में ये साबित ही नहीं कर सकते कि कनाडा में हमें दूसरा लड़का दिखाया गया था और यहाँ पाकिस्तान में कोई और लड़का शादी करने के लिए आया था। नमल ने एतराज़ करते हुए कहा, मुझे कोर्ट में ये सब साबित करना भी नहीं है, इस तरह तो रोमेला का तमाशा बन जाएगा। शादी टूट गई, बस बात ख़त्म, अब इसको इशू नहीं बनाना है। लेकिन इस किस्म के जो फ्रॉड लोग होते हैं, जुर्म करना उनका मामूल होता है। ये कोई पहली गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकत नहीं है जो उन्होंने की है। यकीनन उनके और भी कारनामे मौजूद होंगे और मैं वही पता करके उन्हें जराइम की सज़ा दिलाऊंगा उन्हें। आलियन ये कहते हुए खड़ा हो गया। क्या ये मुमकिन है? नमल भी उसके साथ उठ खड़ी हुई। बिल्कुल मुमकिन है, बस कोशिश शर्त है, आलियन ने पूरे वसूख से कहा। फिर अलविदाई कलमात कहते हुए बोला, थैंक्स नमल, आपका बहुत वक्त ले लिया। नहीं, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, अगर रोमेला के गुनाहगारों को सज़ा मिलती है तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। नमल शुक्र आमेज़ लहजे में बोली, सज़ा तो उन्हें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी, बस देखना ये है कि इस सब में कितना वक्त लगता है। आलियन बहुत पुरएतमाद था। आपका यकीन देखकर मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर होगा, वरना मैं बुराई का अंजाम बुरा ही होगा इस नज़रिए पर ज़्यादा यकीन नहीं रखती। ये नज़रिया नहीं, अल्लाह ताला का तरीका है। उसने अगर ढील दे रखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अभी उन लोगों से उनके अमाल को लेकर पासपुर्स नहीं करेगा। अल्लाह ताला की मसलहत को समझने की बजाय उसके फ़ैसलों पर शिकवा करना ईमान की कमज़ोरी है, जो कि आप जैसी बहादुर लड़की को बिल्कुल ज़ेब नहीं दे रही, जो इतने बड़े और ख़तरनाक फ़ैसले तन तनहा कर सकती हो। आलियन बड़े धीमे लहजे में समझा रहा था। उसका नसीहत करना बिल्कुल नागवार नहीं लग रहा था। वो इतनी नरमी से बात कर रहा था, मगर नमल जवाब में कुछ नहीं बोली, बल्कि सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। आलिया ने उसकी खामोशी पर यह समझा कि शायद वो उसके समझाने पर बुरा मान गई है। तभी मौजू बदलते हुए बोला, तुम्हारे मंगेतर से मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लड़का है, खुरम नाम है ना उसका? नमल चौंक उठी। आप जानते हैं खुरम को? नहीं जानता तो नहीं था, बस यूँ समझ लो राह चलते मुलाकात हो गई थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आलियान के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, उसे ऑफिस में काफ़ी काम था, मगर वो ये सोचकर सारे काम छोड़कर आ गया था कि ऐसा ना हो शगुफ्ता गफ़ार रोमेला के यूनिवर्सिटी जाने पर एतराज़ करें और रोमेला एक दिन जाकर दोबारा ना जाए तो फिर घर से निकलकर नमल से मिलना खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो रोमेला की मौजूदगी में नमल से मिलना चाहता था और रोमेला को लेकर घर से निकलना आसान नहीं था। इस वक्त भी रोमेला उस गाड़ी में आई थी जो बरीरा के इस्तेमाल में थी। आलिया ने रियाज गफ़ार को तो बता दिया था कि रोमेला की पढ़ाई शुरू करने की ख्वाहिश, लेकिन शगुफ्ता गफ़ार को कुछ नहीं पता था। हालांकि उसने सोच रखा था कि उसे क्या कहना है, मगर शगुफ्ता गफ़ार का कोई भरोसा नहीं था। हर पहलू पर गौर करने के बावजूद भी उनसे किसी मौजू पर बात की जाए तो भी उनका रद्द-ए-अमल तवक्का के बरअक्स होता है। आलियन के जाने के बाद कितनी ही देर वो तीनों उसी के मुतालिक बात करती रहीं। वो दोनों एक तरह से पहली बार आलियन से आज ही मिली थी। इससे पहले तो बस रस्मी सी बातचीत हुई थी और उन दोनों को ही आलियन बहुत पसंद आया था। सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल और रख रखाव के अलावा उसकी सोच ने भी उन्हें बहुत मुतासिर किया था।
जो रोमेला से कोई वाबस्तगी ना होने के बावजूद उसके मुजरिमों को सज़ा दिलाने की कोशिश में सरगर्दा था। ये तुम कैसे कह सकती हो कि आलियान भाई की रोमेला से कोई वाबस्तगी नहीं है? नमल के तबसरे पर सुंबल टोकते हुए बोली। भाई देखो, देखने की ज़रूरत मुझे नहीं तुम्हें है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। सुंबल ने नमल की बात काटते हुए रोमेला को मानी खेज नज़रों से देखा तो नमल उसका मतलब समझते हुए कहने लगी, बज़ाहिर तो वाकई दाल में कुछ काला लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ज़ाहिर पर यकीन नहीं करती। कुछ हकीकतें पसे पर्दा भी होती हैं। नमल ने संजीदगी से कहा। वो रोमेला को ज़रा भी ख्वाब नहीं दिखाना चाहती थी कि जिनके टूटने पर रोमेला भी टूट फूट जाए, क्योंकि नमल को यकीन नहीं आ रहा था कि आलियान इतनी आसानी से एक ज़बरदस्ती के तोक को कबूल करेगा। भले ही रोमेला में बेतहाशा खूबियाँ थीं, वो किसी भी इंसान का आइडियल हो सकती थी, मगर सुंबल नहीं चाहती थी कि रोमेला इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद अब कहीं जाकर थोड़ी मुतमईन हुई है तो उसे बिला वजह के खदशात में मुब्तला किया जाए। तभी उसने मौजू बदलते हुए कहा, रोमेला, अगर तुम्हें मौका मिले तो आलियान भाई से पूछना ज़रूर, उनकी खुरम से कहाँ मुलाकात हो गई। नमल भी चौंकते हुए बोली, हाँ, और ये भी कि ऐसी क्या खूबी देख ली जो उसकी तारीफ़ कर रहे थे। खैर, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है, कोई भी जी होश इंसान खुरम से मिलेगा तो उसकी तारीफ़ ही करेगा। रोमेला ने इतला देने वाले अंदाज में कहा तो सुंबल भी तायदी अंदाज में सर हिलाने लगी। कल तो मेरी अम्मी ने भी उसकी तारीफ़ कर दी। नमल ने गहरा सांस खींचते हुए कहा तो वह दोनों उछल पड़ी। क्या बात कर रही हो? सुंबल तकरीबन चीख पड़ी तो नमल ने कल रात उन लोगों के आने के मुतालिक सब बता दिया। वो दोनों इस सूरत हाल के मुतालिक सोचकर यकदम संजीदा हो गई। अजमत खलील ऐसी हरकतों के बायस ही अपना एहतराम खो चुके थे। कुछ पढ़ाई वगैरह करनी है या सिर्फ बातें ही होंगी आज? अचानक आसिया की आवाज़ ने उन तीनों को चौंका दिया। रोमेला अपनी जगह से उठते हुए महज इखलाकियात निभाने के लिए आसिया और उसके साथ खड़ी दूसरी लड़कियों से गले मिलने लगी, वरना वह सुंबल की ज़ुबानी उनकी सारी बदतमीज़ियाँ सुन चुकी थी, खुरम और ज़ोबिया को लेकर। लेकिन अगर इंसान सारी दुनिया से इसी तरह बैर रखने लगे तो खुद उसका अपना जीना मुश्किल हो जाए, लिहाजा वो बातों और रवैयों को नज़रअंदाज कर देने पर यकीन रखती थी और इसी के पेश नज़र उन सबसे मुस्कुराकर बात करने लगी कि तभी नमल का मोबाइल बजने लगा। नमल ने पर्स से मोबाइल निकाला तो अजमत खलील का नंबर देखकर उसे शदीद हैरानी हुई। वह सुंबल को आंख से इशारा करती कैंटीन से बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो तुम? उन्होंने नमल के सवाल का जवाब देना भी गवारा ना किया और बिगड़ कर पूछा। यूनिवर्सिटी में हूँ। क्यों, क्या हुआ? नमल ने हैरत से कहा। तुम फ़ौरन अभी और इसी वक्त घर आ जाओ। क्या अम्मी ठीक है? नमल का दिल एकदम बंद होने लगा। हाँ हाँ ठीक है, उन्हें क्या होना है, बस तुम फ़ौरन घर आ जाओ। अजमत खलील हमेशा की तरह हाकमाना लहजे में बोल रहे थे, ये सोचे बगैर कि उनके इस अचानक फरमान ने नमल को कितना परेशान कर दिया है। लेकिन अब वो बात क्या है, सब खैरियत तो है ना? नमल जिच हो गई, इतने बुरे बुरे वहम आने लगे थे। कोई खैरियत नहीं है, खुरम का फ़ोन आया था, उसने मंगनी तोड़ दी है। अजमत खलील दहाड़े थे। नमल की समझ में नहीं आया कि उससे सुनने में गलती हुई है या अजमत खलील से बोलने में। क्या क्या कहा आपने? एक दफ़ा में कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा है खुरम ने मंगनी तोड़ दी है। अजमत खलील के मुंह से जैसे झाग निकल रहे थे। नमल हैरत की ज़्यादती से सुन हो गई। ये इत्तला अगर अजमत खलील के अलावा किसी और ने दी होती तो शायद वो ये सोच भी सकती थी कि ये कोई मजाक है, लेकिन अजमत खलील से तो ऐसी तवक्का नहीं की जा सकती। फिर वो इस खबर पर यकीन ना करे तो और क्या करे? तुमने सुना नहीं, तुम फ़ौरन घर आ रही हो, अभी और इसी वक्त। अजमत खलील दहाड़ कर बोले तो नमल कुछ कह ही नहीं सकी। दूसरी तरफ उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। नमल कितनी देर बेयकीनी के आलम में खड़ी रही कि सुंबल को अपने करीब आता देखकर वो अपने हवास जमा करने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नमल ने उसके चेहरे से कुछ अखज़ कर लिया था, तभी परेशानी से बोली। पता नहीं खैरियत है या नहीं। नमल तजब्ज़ब का शिकार थी। क्या मतलब? सुंबल उलझी। अब्बू का फ़ोन था, खुरम ने मंगनी तोड़ दी है। नमल ने सुंबल को बगौर देखते हुए कहा। उसकी तवक्का के मुताबिक सुंबल उसकी बात सुनते ही होंकों की तरह उसे देखने लगी। अब्बू ने मुझे घर बुलाया है, मुझे फ़ौरन जाना होगा। लेकिन नमल, सुंबल की समझ में ना आया कि क्या कहे। खबर तो वाकई बहुत शॉकिंग है, लेकिन इस पर तबसरा बाद में करेंगे। मुझे अम्मी की फ़िक्र हो रही है। पता नहीं अब्बू उनके साथ कैसे पेश आ रहे होंगे। मुझे फ़ौरन घर जाना होगा। नमल ने मोबाइल बैग में डालते हुए जल्दी जल्दी कहा। तुम और रोमेला इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, सुंबल ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या मतलब? नमल ठिठक गई।
आज से रोमेला ने आना शुरू किया है तो तुम आना छोड़ दोगी। सुंबल गहरा सांस खींचते हुए बोली। मैं क्यों छोड़ दूंगी, मैं सिर्फ अभी घर जा रही हूँ अम्मी की वजह से, नमल ने समझाने वाले अंदाज में कहा। किसे बेवकूफ़ बना रही हो नमल, क्या तुम अपने फादर को नहीं जानती? खुरम ने मंगनी चाहे जिस वजह से भी तोड़ी हो, इल्ज़ाम सारा तुम पर ही आएगा और तुम्हारे वालिद का गुस्सा भी हमेशा सिर्फ तुम लोगों पर निकलता है, चाहे गलती किसी की भी हो। लिहाजा उनसे ये तवक्का बेकार है कि वह तुम्हें दोबारा इस यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जहाँ खुरम पढ़ता है। सुंबल के मायूसी से कहने पर नमल चंद लम्हों के लिए बिल्कुल लाजवाब हो गई। सुंबल ठीक कह रही थी, अब बहुत मुश्किल ही था कि अजमत खलील उसे यूनिवर्सिटी आने देते। एक बार वो रशीदा बेगम को सख्ती से मना कर देंगे तो रशीदा बेगम किसी न किसी तरह जज्बाती दबाव डालकर नमल को यूनिवर्सिटी जाने से रोक लेंगी। चलो खैर, अभी तो तुम आंटी के पास जाओ, बात की बाद में देखेंगे। सुंबल ने उसे सोच में डूबता देखकर तसल्ली दी। बाद में क्या देखेंगे, अब्बू रोमेला के अबरार भाई से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो भी अपने गुस्से का रिएक्शन दिखाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में किसी और शख्स के साथ तय भी कर सकते हैं। घर जाने से पहले मुझे खुरम से बात करनी चाहिए, ज़रा पता तो चले कि उसने मंगनी क्यों तोड़ी है और इसकी वजह क्या बताई है। नमल ने बैग की जिप खोलते हुए कहा। मंगनी खुरम के पेरेंट्स ने तोड़ी होगी। कल जो कुछ वो देख कर गए हैं उसके बाद वो उस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते होंगे। बहुत से लोगों की आदत होती है, ऐसे घर से लड़की लेना पसंद नहीं करते जहाँ का माहौल उन्हें पसंद ना आए। सुंबल ने तनफ्फर से कहा। मुझे नहीं लगता कि ये फैसला उसके वालिदैन का है। मेरे घर से जाते वक्त वो लोग इतने बेजार नहीं थे कि घर जाकर मंगनी तोड़ने का फैसला कर लेते, और न ही खुरम इतना फर्माबरदार है कि उनके कहने पर कोई कदम उठाए। अब्बू ने कहा था खुरम का फ़ोन आया है, उसने मंगनी तोड़ दी है। गोया उनकी बराह रास्त खुरम से बात हुई है। इतनी अहम बात, पेरेंट्स के खिलाफ जाकर उसने मंगनी तोड़ी है यकीनन, इसीलिए उन्होंने खुद बात करने से भी इनकार कर दिया होगा। नमल मोबाइल हाथ में पकड़े ताने बाने बुनती रही। तो फिर क्या वजह हो सकती है खुरम के मंगनी तोड़ने की? इस तरह मंगनी तोड़कर तो उसने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है, और उसका शिकस्त कबूल कर लेना बिला वजह नहीं हो सकता। सुंबल सोचते हुए बोली। कल घर पर भी उसका रवैया बहुत अजीब था। कहीं उसने अम्मी की वजह से? नमल ने चौंकते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। रशीदा आंटी? सुंबल ने अचंभे के साथ दोहराया। हाँ, ओ माय गॉड, कहीं उसने अब्बू के सामने अम्मी से किसी किस्म की हमदर्दी का इजहार ना कर दिया हो। कल जिस तरह अब्बू अम्मी के साथ पेश आ रहे थे वो खुरम को पसंद नहीं आया था। अगर उसने इस बारे में अब्बू से कोई बात की होगी तो अब्बू का मूड अम्मी से बहुत बुरी तरह ख़राब होगा। पता नहीं वो उनको कितनी बातें सुना चुके होंगे। नमल इस ख्याल के आते ही बुरी तरह मुस्तरिब हो गई और अपने मोबाइल में खुरम का नंबर तलाश करने लगी, और तभी उस पर इंकशाफ हुआ कि उसके पास तो खुरम का मोबाइल नंबर है ही नहीं। तुम्हारे पास खुरम का नंबर होगा? उसने सुंबल से पूछा तो वो भी चौंक उठी। नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसका नंबर लेने की। तुम कहो तो मैं आसिया वगैरह से पूछ लूँ, उनके पास होगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, ख्वामख्वाह में उन्हें सवाल जवाब करने का मौका मिल जाएगा। पता करते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी आया है तो उससे बराह रास्त बात कर लेते हैं। अगर उसने ये मंगनी वालिदैन के खिलाफ जाकर तोड़ी है तब तो घर से फरार हासिल करने के लिए ज़रूर आएगा। नमल ने निचला होंठ काटते हुए पुरसोच अंदाज में कहा तो सुंबल ने भी उसकी तायद करते हुए खुरम की तलाश में उसके साथ कदम आगे बढ़ा दिए। रोमेला बाकी लड़कियों के साथ कैंटीन में ही मसरूफ़ गुफ्तगू थी, और अगर फारिग भी होती तब भी नमल रशीदा बेगम का ख्याल आते ही इतनी परेशान हो गई थी कि वो खुरम को जल्द से जल्द तलाश करने में लग गई, ताकि सच्चाई का पता चलते ही वो घर पहुंचकर चीखते और गुर्राते अजमत खलील के सामने रशीदा बेगम की ढाल बनकर खड़ी हो सके। कुछ ही देर में उसे दूसरे स्टूडेंट्स के ज़रिए ये तो पता चल गया कि खुरम यूनिवर्सिटी आया है, मगर वो है कहाँ, ये जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर जब नमल ने थक कर उससे मिलने का इरादा मुलतवी कर दिया तब पार्किंग की तरफ जाते हुए अचानक वो सामने आ गया। नमल उस पर नज़र पड़ते ही तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। खुरम भी उसे अपनी तरफ आता देख कर रुक गया। नमल ने उसके सामने आते ही बगैर किसी तमहीद के छूटते ही पूछा, ये सब क्या है? एक तो वो रशीदा बेगम का सोचकर पहले ही परेशान थी, उस पर खुरम को तलाश करने में जो वक्त और मेहनत सर्फ हुई थी उसने नमल को शदीद किस्म की झंझलाहट में मुब्तला कर दिया था। तभी उसका लहजा खुद ब खुद तीखा हो गया। क्या? खुरम समझ नहीं सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी नमल को उसके मंगनी तोड़ देने की इतला मिल सकती है। उसने यहीं यूनिवर्सिटी आकर तो अजमत खलील को फ़ोन किया था। उसके बाद से उसका दिल इतना बेजार हुआ था कि वो घर जाने के इरादे से पार्किंग में आ गया था, मगर यहाँ आने के बाद उसका घर जाने का भी दिल नहीं चाह रहा था। वो सोच रहा था इस वक्त तो कोई मॉल भी नहीं खुला होगा कि वो उसी में जाकर बैठ जाए। एक तरह से वो खाली और जहनी के आलम में पार्किंग में टहल रहा था। चुनाचे नमल की बात उसके सर पर से गुजर गई।
नमल को उसका अनजान बनना मजीद सुलगा गया था। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोली, तुम्हें अगर मंगनी तोड़नी थी तो इतने अरसे इंतजार क्यों किया, बल्कि तुमने मंगनी की क्यों थी जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी। खुरम की समझ में ना आया उसे क्या जवाब दे। ये बात अभी उसने सिर्फ अजमत खलील से की थी, लिहाजा ये इतला उसे अजमत खलील से ही मिली होगी, और उसका अंदाज बतला रहा था कि उन्होंने खासे सख्त तरीके से उससे गुफ्तगू की है, तभी वो इतनी बिफरी हुई है। खुरम ने उसे ठंडा करने के लिए रसानियत से कहा, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने मंगनी क्यों की थी और अब क्यों तोड़ दी? क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि तुम जो चाहती थी वो हो गया है? मैं अगर सिर्फ अपने बारे में सोचने वालों में से होती तो ये मंगनी हो ही नहीं सकती थी। मुझे खुद से ज़्यादा अपनी माँ की फ़िक्र है, इसलिए पूछ रही हूँ, तुमने अब्बू से क्या कहा है? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ माजरत की है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। खुरम ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए पुरसकून से कहा, और तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हारी माजरत कबूल कर ली? कल रात तुम हमारे घर आए और आज सुबह तुमने शादी से इनकार कर दिया। इसका साफ मतलब तो यही है ना कि कल तुम इस कदर तंग आकर वहां से उठे थे कि घर जाते ही तुमने फैसला कर लिया। हालांकि मैं जानती हूँ तुम्हारे इनकार की वजह कल हमारे घर आना नहीं है, लेकिन मेरे अब्बू को ये बात कौन समझाएगा? तुमने ये मंगनी कोई अपनी खुशी से तो नहीं की थी। मुझे उम्मीद थी तुम शादी के बाद मुझे छोड़ोगे। तुमने समझदारी दिखाते हुए पहले ही गले का तोक उतार कर फेंक दिया, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं कि तुमने क्या किया और क्यों किया। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि तुमने कैसे किया। तुम्हें अब्बू को फ़ोन करके पूरी बात तफसील से बतानी होगी कि तुम इस शादी के लिए कभी सीरियस थे ही नहीं। तुमने ऐसे ही बस वक्ती जोश के ज़ेरे असर मंगनी कर ली थी, और अब वो जोश ठंडा हो गया है तो मंगनी तोड़ दी। इन तमाम बातों के पीछे मेरी अम्मी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कल ऐसा कुछ भी कहा या किया नहीं था जिसके बायस तुमने ये कदम उठाया। नमल रुके बगैर एक सांस में बोल रही थी। वो तो खुरम को देखते ही तेज तेज चलती उस तक आ गई थी, जबकि सुंबल के कदम खुरम पर नजर पड़ते ही सुस्त पड़ गए थे। लिहाजा वह उन दोनों के नजदीक पहुंची थी। ये और बात थी कि नवल की आवाज उसे पहले से सुनाई दे रही थी। उसका गुस्सा देखते हुए सुंबल कुछ कदम के फासले पर ही खामोशी से खड़ी हो गई। क्या उन्होंने तुम्हारी वालदा को मोर्दे इल्जाम ठहराया है? खुरम जो बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था, उसके खामोश होने पर संजीदगी से पूछने लगा। हाँ, नमल यकीन से बोली, क्योंकि वो अपने वालिद को अच्छी तरह जानती थी। उनके फौरन उसे घर बुलाने का मकसद भी यही था कि रशीदा और नमल पर अपना गुस्सा निकाल सकें। आखिर को उन्होंने नमल की मर्जी के बगैर ये मंगनी कर दी थी। उन्हें खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने के लिए उन दोनों को ही कचोके लगाने थे। अगर ये बात है तो मैं उनसे फ़ोन पर दोबारा बात करके इस मंगनी को तोड़ने की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता हूँ। हालांकि जितना मैं उन्हें समझ सका हूँ उसकी रोशनी में, मैं चाहे उनसे जो भी कह लूँ, उन्हें मुझ पर यकीन नहीं आएगा और वो तुम्हें और आंटी को ही कोई ना कोई अजियत देंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बात करने से सिचुएशन पर कोई फ़र्क पड़ सकता है तो मैं अभी बात कर लेता हूँ। खुरम बड़ी बुर्दबारी से बात कर रहा था। उसके लहजे या गुफ्तगू में उसके वालिद की फितरत को लेकर हल्का सा भी तंज या तमस्खर नहीं था, बल्कि उसके रवैये से ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई इस मसले को हल करना चाहता हो। नमल के गुस्से में जैसे एक ठहराव आ गया। वो किसी सोच में घिरी उसे देखे गई। वो गलत नहीं कह रहा था। जब वो अजमत खलील को जानने का दावा करती है तो फिर ये कैसे फरामोश कर गई कि खुरम चाहे जो भी कह ले, उन्हें नमल और रशीदा बेगम से खाइफ होना है। फिर भला क्या ज़रूरत थी इतने शदीद रद्द अमल का मुजाहरा करने की? अजमत खलील ने घर आने को कहा था, उसे चुपचाप घर चले जाना चाहिए था। वो अगर कल से उसे यूनिवर्सिटी नहीं आने देते तब भी ये नमल का मसला था, खुरम का नहीं, जो उसकी जान खाई जाए। क्या सोच रही हो? तुम कहो तो अभी फ़ोन करूं? खुरम ने उसे चुप देख कर कहा। नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, नमल बेसाख्ता बोली, फिर अपनी खिजालत मिटाने के लिए वजाहत देने लगी। असल में कल जो कुछ हुआ, मुझे लगा तुमने अब्बू से उसी की शिकायत करते हुए शादी से इनकार किया होगा। अगर तुमने ऐसा कुछ कहा होता तो अब्बू वाकई अम्मी के लिए क़यामत खड़ी कर देते। मैंने जब मंगनी की थी तब ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, और अब जबकि तोड़ी है तो भी मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ। फिर मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे अब्बू के सामने झूठी तावेलें पेश करने की? खुरम ने नहायत ठोस लहजे में कहा। तो सच क्या है? नमल खुद को एकदम हल्का फुल्का महसूस करने लगी। वो खुरम की तरफ से किसी गलत बात की तवक्का कर रही थी कि उसने रशीदा बेगम या नमल पर कोई इल्ज़ाम रखकर अपनी जान छुड़ाई होगी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। लिहाजा अजमत खलील अपनी आदत के मुताबिक एक बिला वजह हंगामा खड़ा करेंगे और कुछ दिनों बाद फिर सब कुछ मामूल के मुताबिक हो जाएगा। इस सब की तो वो बचपन से आदी थी। इस वक्त सबसे अहम बात यह थी कि खुरम ने उसे इस ज़बरदस्ती के बंधन से आज़ाद कर दिया था, और अचानक एक खुशगवार एहसास ने उसका सारा गुस्सा ख़त्म कर दिया था। रशीदा बेगम की तरफ से उसे अभी भी फिक्र थी, इसलिए उसे घर पहुंचने की जल्दी भी थी, मगर इतनी भी नहीं कि खुरम की इस काया पलट का सबब ही ना पूछती। क्या मतलब? खुरम समझा ही नहीं।
مطلب یہ کہ اگر تم نے کل امی ابو کے بیچ کشیدگی دے کر اس منگنی کو ختم نہیں کیا تو پھر کیوں کیا ہے؟ تم تو زبردستی مجھ سے شادی کرنے کا عہد کیے بیٹھے تھے۔ نمل کا انداز چڑھانے والا نہیں تھا، بلکہ زندگی میں پہلی بار وہ بڑے تحمل سے اس سے بات کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا تھا۔ خرم بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ ایک بار اس نے جھوٹ موٹ میں نمل سے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے یہ منگنی کی ہے۔ تب نمل چند ثانیوں کے لیے پتھرا گئی تھی۔ آج اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے محض اس کی خوشی کی خاطر اس نے اپنے دل کی ایک نہ سنی اور اس کے حصول کا پورا اختیار رکھتے ہوئے بھی خاموشی سے اپنے اختیار سے دستبردار ہو گیا۔ مگر وہ یہ سب کہہ نہیں سکا، کوئی چیز اسے یہ کہنے سے روک رہی تھی، اس کی انا یا شاید کچھ اور، وہ سمجھ نہیں سکا۔ خرم کو خاموش دیکھ کر نمل آنکھوں کو ذرا سا چندھیاتے ہوئے بولی، تم نے سوچا تو ہر پہلو پر ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے جذبات میں آ کر منگنی توڑ دی کہ کون اس نام نہاد رشتے کو نبھائے گا۔ آرام سے 10-12 سال بعد شادی کروں گا، مگر یہ لوگ اتنی لمبی منگنی رکھنے نہیں دیں گے، لہٰذا جلدی اس بات کو ختم کر دیا جائے۔ اتنا ہی اچھا ہے، اس رشتے کو جتنا طول دیا جائے گا اتنے مسائل ہوں گے، لیکن اس منگنی کے ٹوٹنے پر یونیورسٹی کا ریئیکشن معمولی نہیں ہوگا۔ یہاں سب بہت کچھ کہیں گے، تمہیں منگنی توڑنی ہی تھی تو اپنا فائنل کلیئر کرنے کے بعد توڑتے، ایک بار یہاں سے چلے جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ نمل اب باقاعدہ اسے مشورہ دے رہی تھی۔ اس نے آج تک اتنے سکون سے کبھی خرم سے بات نہیں کی تھی۔ ان کے بیچ ہمیشہ یا تو بحث ہوئی تھی یا محض دوسروں کو سنانے کے لیے طنزیہ گفتگو۔ آج پہلی بار وہ اتنے خوشگوار انداز میں بات کر رہی تھی کہ خرم کا دل چاہنے لگا وہ بس بولتی رہے۔ پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ نمل سے پرسکون ماحول میں بات کرنا کتنا خوبصورت احساس ہے، جو ایک زبردستی کے رشتے میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کو اذیت دے کر بظاہر شاید انسان کو یہ لگتا ہو کہ اس کی انا کو تسکین مل رہی ہے، لیکن در حقیقت انسان کا ضمیر مر رہا ہوتا ہے، اور جب ضمیر مرنے لگے تو ذہنی سکون اور قلبی آرام سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اذیت چاہے انسان جان بوجھ کر دے یا انجانے میں، اس کا اثر دونوں فریقین پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے فیصلے پر دکھی ہونے کے باوجود وہ مطمئن تھا، اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ چنانچہ نمل کے سوال پر وہ اپنی ازلی لاپرواہی کے ساتھ بولا، فرق تو مجھے اب بھی نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یو نو می، ہو کیئرس، لیکن پھر بھی اس اچانک فیصلے کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ نمل بس ضد تھی جاننے پر۔ ہاں ہے وجہ، مگر وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، خرم نے نہایت صاف گوئی سے کہا تو نمل کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد سنجیدگی سے کہنے لگی، کہیں یہ وجہ وہی تو نہیں جس کے بارے میں یونیورسٹی میں سب بات کر رہے ہیں؟ خرم نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا تو نمل وضاحت کرتے ہوئے بولی، دیکھو مجھے تمہارے پرسنل معاملے میں بولنے کا کوئی حق تو نہیں ہے، لیکن تمہارے پیرنٹس بہت اچھے ہیں، صرف ان کی خاطر میں ایک مشورہ دوں گی، کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خرم نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا تو نمل کچھ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، کیا یہ سب تم زوبیہ کے لیے کر رہے ہو؟ خرم کو قطعی امید نہیں تھی کہ نمل یہ سوچ سکتی ہے، اس کا تو جیسے ایک دم دماغ ہی گھوم گیا۔ اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات ابھرتے دیکھ کر نمل جلدی سے کہنے لگی، میں نے صرف ایک اندازے کے مطابق کہا ہے، اس کی تائید یا تردید کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اور میں یہ سب صرف فرقان انکل اور آنٹی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ وہ دونوں بہت کیئرنگ ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کتنے لکی ہو۔ والدین کو تو کبھی دکھ نہیں دینا چاہیے، اور ایسے پیرنٹس کو تو بالکل نہیں۔ کسی بھی والدین کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ اس کی اولاد کی شادی کسی ذہنی بیمار شخص سے ہو، خاص طور پر ایسی صورت میں جب ان کی ایک ہی اولاد ہو۔ نمل بڑی رسانیت سے بول رہی تھی۔ خرم کو یقین تھا وہ یہ سب بلا وجہ نصیحت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، اسے واقعی اس کے والدین کی فکر ہے، لیکن خرم زوبیہ اور اپنے بارے میں فرقان حسن کے منہ سے سن کر اتنا تپا ہوا تھا کہ نمل کے منہ سے زوبیہ کا نام سنتے ہی اس کا تنفس بڑھنے لگا۔ میں یہ سب زوبیہ کے لیے نہیں کر رہا، نہ ہی میرے اور زوبیہ کے بیچ ایسا کچھ ہے کہ مجھے اس کی خاطر منگنی توڑ کر اپنے والدین کو دکھ دینا پڑے۔ میں تو یہ سب… خرم نے کچھ کہتے کہتے سختی سے لب بھینچ لیے۔ نمل اس کے رد عمل پر کچھ سٹپٹا سی گئی تھی۔ اسے عادت نہیں تھی ذاتی معاملے میں دخل دینے کی، اور یہ تو تھا بھی اتنا حساس موضوع کہ اس پر بات کرنے سے پہلے تو 10 بار سوچنا چاہیے تھا، خاص طور پر تب جب سامنے والے سے آپ کی کوئی گہری دوستی یا وابستگی بھی نہ ہو۔ خرم کے چبا کر کہنے پر سنبل بھی بے اختیار ان کے قریب آ گئی۔ نمل کا مقصد آپ کو تانے مارنا نہیں تھا، وہ تو یہ سب آپ کے والدین کی خاطر کہہ رہی تھی، ورنہ تو یہ آپ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ نے چاہے جس وجہ سے بھی یہ منگنی توڑی ہے، ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ شادی کوئی مذاق نہیں ہے جو کسی بھی وقت کر لی اور کہیں بھی جا کر توڑ دی۔ اگر آپ پورے خلوص سے نمل کی طرف بڑھے ہوتے تب تو بات الگ تھی، لیکن نہ آپ مخلص تھے نہ نمل۔ ایسے رشتے کو بر وقت ختم کر دینا ہی بہتر تھا۔
اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یونیورسٹی میں کون کیا سوچ رہا ہے؟ سنبل جلدی جلدی بولی تو خرم ہنوز خشک لہجے میں بولا، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی سوچے مجھے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی لڑکی کے بارے میں غلط رائے رکھنا اور بغیر تصدیق کے اس کا دوسروں کے سامنے اظہار کر دینا نہایت غلط بات ہے۔ زوبیہ پاگل خانے میں ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا اس کی اذیت اور تکلیف کا۔ نہ جانے اسے وہاں کب تک رہنا پڑے، پتہ نہیں وہ کبھی وہاں سے نکلے گی بھی یا نہیں۔ اس کی خاطر میرا تم سے منگنی توڑنا نہایت حماقت کی بات ہے۔ آئی ایم سوری۔ نمل بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی خجالت دیکھ کر خرم نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کچھ دیر نمل کو دیکھتے رہنے کے بعد بہت دھیمے لہجے میں کہتا اپنا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اٹس اوکے۔ نمل اور سنبل خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہیں کہ اچانک سنبل نے اسے پکار لیا تو وہ اپنی جگہ رک گیا، مگر پلٹا تب بھی نہیں، بس ذرا سی گردن موڑ کر سنبل کو دیکھنے لگا، جس کا سوال خرم تو کیا نمل تک کو حیران کر گیا تھا۔ کیا یہ منگنی آپ نے اس لیے توڑی ہے کہ نمل خوش نہیں ہے؟ نمل منہ کھولے سنبل کو دیکھنے لگی، مگر سنبل کی نظریں خرم پر جمی تھی، جو ایک حیران نظر اس پر ڈال کر نمل کو دیکھنے لگا تھا، مگر نمل اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نمل دانت پیستے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولی، مگر سنبل پر جیسے کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے خرم کا مشاہدہ کر رہی تھی، جو بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس کی خاموشی نے نمل کو چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کی طرف سے کسی استہزائیہ ہنسی یا تمسخرانہ فکرے کی منتظر تھی۔ تبھی اسے سنبل کا یہ سوال کرنا سخت گراں گزرا تھا، جس نے یہ پوچھ کر ایسا تاثر دیا تھا جیسے وہ دونوں بڑے خوش فہم ہوں اور جانے کون سی تصوراتی دنیا میں رہ رہے ہوں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے سنبل کا مذاق اڑایا، نہ ہی کوئی چھچورا سا کہہ کہا مارا، بلکہ اس نے تو سنبل کے سوال کی نفی بھی نہیں کی، حالانکہ اسے فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا۔ نمل نے بے ساختہ خرم کی جانب دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ بغیر کچھ کہے فوراً اپنی گاڑی کی طرف گھوم گیا، پھر گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر گاڑی نکال کر لے جانے تک اس نے ان دونوں کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جبکہ وہ دونوں کتنی ہی دیر اس دھول کو دیکھتی رہیں جو خرم کی گاڑی اڑا کر گئی تھی۔ نمل دانستہ سنبل کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی۔ وہ اس وقت اس موضوع پر کچھ بولنا تو درکنار کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے برعکس سنبل سوچوں میں اتنی غرق تھی کہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ سنبل میں گھر جا رہی ہوں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، نمل نے کہا، اور سنبل کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ سارے راستے اس کا ذہن بری طرح منتشر رہا، کسی بھی ایک نقطہ پر وہ یکسو ہو کر سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی ذہن رشیدہ بیگم کی طرف چلا جاتا، کبھی عظمت خلیل کے غصے کے بارے میں سوچنے لگتی۔ اچانک اسے فرقان حسن اور مسز فرقان سے کل رات والی ملاقات کا خیال آنے لگتا، تو کبھی خرم کے رویے کی یہ تبدیلی اسے الجھانے لگتی۔ انہی ساری الجھنوں کے ساتھ جب وہ گھر پہنچی تو عظمت خلیل رشیدہ بیگم پر چیخ چلا کر تھک چکے تھے۔ البتہ نمل کو دیکھتے ہی انہیں ایک نئی قوت مل گئی، تو وہ ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ نمل کی توقع کے مطابق ان کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ کل وہ دونوں ماں بیٹی اس قدر بد اخلاقی سے پیش آئیں کہ خرم کی عزت نفس مجروح ہو گئی۔ فرقان صاحب کو عظمت خلیل نے فون کیا تھا اور وہ بیٹے کی حرکت پر سخت شرمندہ تھے۔ گو کہ عظمت خلیل ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش نہیں آئے تھے، لیکن ان کا معذرت خواہانہ انداز سن کر وہ اپنی بھڑاس نہ نکال سکے، اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کے پاس رشیدہ بیگم اور نمل موجود تھی، جن پر اپنی جھنجھلاہٹ نکالنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نمل خاموشی سے رشیدہ بیگم کی ویل چیئر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رشیدہ بیگم بے آواز رو رہی تھی۔ نمل اس وقت کچھ کہہ کر ہنگامے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، ویسے بھی اس کے پاس کہنے کے لیے ایسا کچھ خاص تھا بھی نہیں۔ خرم میں بظاہر ایسی کوئی برائی نہیں تھی جسے بنیاد بنا کر وہ عظمت خلیل کے فیصلے کو غلط قرار دیتی۔ البتہ ان کی جلد بازی اور رشیدہ اور نمل بیگم سے مشورہ کیے بغیر سب طے کر دینا اخلاقی اور شرعی لحاظ سے غلط تھا، مگر اس وقت اس پر بات کرنا بے سود تھا، اور یہ تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ خرم کا اس سے منگنی کرنے کا مقصد کیا تھا، لہٰذا یہ شکایت کرنا سرے سے حق ہی نہیں بنتا تھا۔ کل ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا رویہ فرقان حسن اور بھابھی کے ساتھ کس قدر خشک اور روکھا پھیکا ہے۔ خرم سے بھی تم نے ڈھنگ سے کوئی بات نہیں کی، بھلا ایسی لڑکی سے اسے شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یونیورسٹی میں بھی تم اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آتی ہوگی، بیزار آ گیا ہوگا وہ۔ عظمت خلیل صرف جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے، ورنہ انہیں کیا پتہ نمل ان کے آنے سے پہلے فرقان حسن اور مسز فرقان کے ساتھ بڑے خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہی تھی۔ تم اب کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ جب رشیدہ اور نمل ان کی کسی بھی بات پر کچھ نہ بولیں تو آخر تھک کر انہوں نے صرف نمل کو تپانے کے لیے وہی کہا جس کی نمل کو امید تھی۔ نمل نے ایک نظر رشیدہ بیگم کے چہرے پر ڈالی، جہاں دکھ اور ملال کا پورا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اشک تھے کہ بہے جا رہے تھے۔ نمل نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ اس وقت رشیدہ بیگم کے لیے بس وہ یہی کر سکتی تھی کہ بپھرے ہوئے عظمت خلیل سے کوئی بحث نہ کرتی۔ اگر وہ کچھ کہتی تو عظمت خلیل جواباً اتنا زہر اگلتے کہ رشیدہ بیگم کے رگو پے میں خون کی جگہ دکھ اور تلخیاں گردش کرنے لگتی۔
अजमत खलील हुक्म सादिर करके पाँव पटकते घर से बाहर निकल गए तो रशीदा बेगम जो बेआवाज आंसू बहा रही थी फूट फूट कर रोने लगी। नमल उठकर उनके लिए पानी ले आई, जिसे पीने के काफ़ी देर बाद वो बोलने के काबिल हुई। क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हुआ? नमल जैसे कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही। जो उसे पता था, पता नहीं वो कितना सही था। कुछ देर सोचने के बाद उसने नफ़ी में सर हिला दिया। रशीदा बेगम ठंडी सांस भरते हुए कहने लगी, चलो जो भी वजह हो, तुम जो चाहती थी वो हो गया। अल्लाह करे इसी में तुम्हारी बेहतरी हो और हम सब की भी। नमल कुछ भी ना बोली, बस सर झुकाए बैठी रही तो रशीदा बेगम व्हील चेयर किचन की जानिब घुमाते हुए कहने लगी, अभी कुछ दिन यूनिवर्सिटी ना जाओ, थोड़ा इनका गुस्सा ठंडा होने दो। फिर खुरम भी वहीं होता है, कुछ दिन हर जुबान पर यही चर्चा होगा, लोगों की बातें तुम्हें खामखा परेशान करेंगी। रशीदा बेगम ये कहकर चली गई, जबकि नमल सिर्फ सोचती रह गई कि वो जब भी जाएगी नए सिरे से लोग इस मौजू पर बात करने लगेंगे। उसका घर में बैठना कोई हल नहीं। अलबत्ता ये वाकई सच था कि अजमत खलील को ठंडा रखने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो उन्हें शदीद पेचोताब में मुब्तला कर गया था और उनकी ये चिड़चिड़ाहट पता नहीं कितने तवील अरसे तक नमल और रशीदा पर निकलनी थी। अगर ये सब सिर्फ जुबान तक महदूद रहता तब तो ठीक था, लेकिन अगर वो रद्द-ए-अमल के तौर पर मजीद कोई फैसला करने वाले थे तब तो जाने क्या होगा। जिंदगी जो बिल्कुल बेकैफ और बेमकसद हो गई थी वो एक बार फिर रोमेला को मामूल पर आती लगने लगी। हालांकि अभी भी हालात के पेचोखम जूं के तूं थे, मगर रोमेला को एक बेहतरीन मसरूफियत मिल गई थी। अपनी तालीम दोबारा शुरू करके उसे ज़हनी तौर पर बहुत सुकून मिला था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस माहौल से थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाती थी। बस इस बात का दुख था कि उसके आते ही नमल ने आना छोड़ दिया था। खुर्रम की हरकतों से वो वाकफ थी और ज़बरदस्ती के रिश्ते के नताइज को अमलन भुगत भी रही थी, लिहाजा जो हुआ था वो उसे सबके लिए बेहतर समझ रही थी। बस एक खुर्रम का रवैया उसे और सुंबल को उलझन में मुब्तला कर रहा था। खुर्रम ने मंगनी टूटने का जिक्र यूनिवर्सिटी में नहीं किया, लेकिन अजमत खलील ने अपने सर्कल में सबको बता दिया, जो कि कुदरती तौर पर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। फिर जब खुर्रम से तस्दीक की गई तो उसने कबूल कर लिया। फिर तो जैसा कि हमेशा से होता आया है कि हर जगह, हर क्लास, हर डेस्क और हर टेबल पर यही जिक्र होता रहा। सुंबल और रोमेला हर सवाल के जवाब में पता नहीं कह कह कर थक गई। रोमेला तो सीधे खुर्रम के पास बात करने पहुंच गई और उसे अच्छा खासा सुनाने लगी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मंगनी करने की? तुमने इसे छोटी बात समझ रखा था ना। भले ही उसकी शरई हैसियत कोई ना हो, लेकिन ये एक कमिटमेंट है और जब कमिटमेंट टूटती है तो दोनों की ज़ात पर उंगलियां उठती हैं। तो क्या करता? लोगों को खामोश रखने के लिए ये जानते हुए भी नमल से शादी कर लेता कि नमल इस रिश्ते से खुश नहीं है। खुर्रम ने निहायत संजीदगी से पूछा, तो ये बात उस वक्त क्यों नहीं सोची जब मंगनी कर रहे थे? रोमेला जिच होकर बोली। खुर्रम कुछ देर तो बड़ी खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बहुत ठहर ठहर कर बोला, तुम्हें इस बात पर एतराज़ है कि मैंने गलती क्यों की? इस बात पर खुशी नहीं कि मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ? तुम्हें सुधारने का ख्याल बहुत देर से आया है। रोमेला चबा कर बोली, नहीं, मुझे बिल्कुल बर वक्त आया है, वरना मेरा इरादा उसे शादी के बाद छोड़ने का था, जो कि मुझे यकीन है कि बदल जाता। लेकिन उस वक्त फैसला बदलने में और अभी बदलने में बहुत फ़र्क है ना? खुर्रम ने बराह रास्त रोमेला की आंखों में देखते हुए पूछा, तो रोमेला भी कुछ देर बस उसे देखती रह गई। फिर बगैर कुछ बोले खामोशी से पलट गई। यूनिवर्सिटी से घर जाकर उसने अपनी और खुर्रम की गुफ्तगू के बारे में नमल को सब बता दिया तो नमल उस पर चढ़ दौड़ी। तुम्हें ज़रूरत क्या थी उससे बात करने की? मंगनियाँ टूटती हैं तो बातें तो बनती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खामोश हो जाते हैं। तुम्हारे इस तरह पूछने से तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें मंगनी टूटने का बड़ा दुख है। दुख तो मुझे वाकई है नमल, रोमेला बड़े ठहराव के साथ बोली। खुर्रम की तुम्हारे साथ शादी पर मुझे महज इसलिए एतराज़ था कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है वो वाहिद एतराज़ भी दूर हो गया है। उसे मंगनी तोड़ने की बजाय एक बार अपने दिल की बात खुलकर तुमसे कहनी चाहिए थी, मगर शायद उसने तुम्हारे रवैये की सख्ती देखते हुए ऐसा कोई इरादा नहीं किया, जो कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। नमल की इस बात पर खामोश रही। खुर्रम के रवैये को सोचकर वो खुद भी उलझी हुई थी। बेशक उसे कभी खुर्रम की तरफ से किसी खूबसूरत इजहार और नाजुक एहसासात की ख्वाहिश नहीं रही थी, मगर रशीदा बेगम को इस रिश्ते के टूटने से बहुत दुख हुआ था। घर के माहौल में फैली कशीदगी देखकर उसे वाकई ख्याल आ रहा था कि अगर बीच की कोई राह निकल आती तो कितना अच्छा होता। उसे खामोश देखकर रोमेला ने मौजू बदल दिया। अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी आने के कुछ इम्कान पैदा हुए क्या? फ़िलहाल तो अब्बू गुस्से में हैं, अभी 1-1.5 हफ्ते तक तो कोई इम्कान नहीं। नमल की बात पर रोमेला ने 1-2 इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। नमल से इस मौजू पर अब बात करना बेकार था, वो अब कुछ नहीं कर सकती थी, मगर रोमेला का दिल चाहता था कि खुर्रम एक बार खुलकर अपने एहसासात का इजहार कर दे। आया उसे नमल से मोहब्बत हो गई है या ये सब सिर्फ इंसानियत पर मबनी एक अक्लमंदाना फ़ैसला है
جس کے پیش نظر اپنی انا سے ہٹ کر سب کی بہتری ملحوظ ہوتی ہے، جیسے کہ آلیان کر رہا تھا۔ اس نے رومیلا سے ساری کدورت بالائے طاق رکھ کر بالکل دوستانہ ماحول بنا لیا تھا، اگرچہ اس سے بات وہ ہمیشہ شگفتہ غفار اور ریاض غفار کی غیر موجودگی میں کرتا تھا، مگر ایک اس کے رویے کی نرمی شگفتہ غفار کی خاموش نظروں کے کوڑوں پر مرہم رکھ دیتی تھی۔ رومیلا نے یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا تو ایک دن جب شگفتہ غفار اور ریاض غفار گھر پر نہیں تھے، آلیان آفس سے جلدی اٹھایا اور اسے زبردستی بازار لے گیا۔ جو کپڑے تم شادی سے پہلے پہن کر جاتی تھی وہی تم اب بھی پہن کر جاؤ گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ تمہیں ایک ٹھیک ٹھاک کلیکشن کی ضرورت ہے یونیورسٹی جانے کے لیے، آلیان دو ٹوک لہجے میں بولا۔ رومیلا نے بحث کے لیے منہ کھولا تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر ممی کچھ پوچھیں تو کہہ دینا جہیز کے کپڑے ہیں۔ میرے جہیز کے کپڑے میرے پاس واقعی موجود ہیں، رومیلا نے بحث سے پہلے ہی تھک کر بتا دیا۔ گھر میں تم ہر وقت ان 4 کپڑوں میں گھومتی ہو، اس سے صاف ظاہر ہے کہ تمہارے جہیز کے کپڑے صرف فنکشنز اور پارٹیز میں پہننے کے قابل ہیں، ان میں تم یونیورسٹی تو نہیں جا سکتی نا۔ آلیان کی بات میں اتنا وثوق اور وزن تھا کہ رومیلا کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے جہیز کے کپڑے یونیورسٹی میں پہننے کے قابل نہیں تھے، اور پھر آلیان کے ساتھ وقت گزارنے کا تجربہ رومیلا کے لیے بہت انوکھا اور خوبصورت ہوتا تھا، کیونکہ ایسے موقع بہت کم میسر آتے تھے۔ رومیلا بازار میں کپڑوں اور دیگر اشیاء سے زیادہ آلیان کی سنگت کو محسوس کرنے میں مصروف رہی۔ آلیان نے خود ہی اس کے لیے کافی سارے ریڈی میڈ کپڑے اٹھا لیے۔ وہ تو اتنے پیسے خرچ ہونے پر شرمندہ ہو رہی تھی، مگر ایک چیز اسے پتہ چل گئی تھی کہ نہ صرف آلیان کی پسند بہت اچھی ہے بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے کے معاملے میں وہ بالکل بھی بخیل نہیں ہے۔ اس نے رومیلا کے لیے ہر چیز بہت عمدہ اور پرائز ٹیگ دیکھے بغیر خریدی تھی، اسی لیے جب گھر پہنچنے پر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو رومیلا نے خاص طور پر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے پکار لیا، آلیان۔ آلیان چونک کر اسے دیکھنے لگا، اس نے کبھی اس طرح آلیان کا نام نہیں لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ رومیلا کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا۔ آلیان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رومیلا بھی اپنے کمرے میں آ کر سارے شاپرز بستر پر ڈال کر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آلیان کی سنگت میں وہ جتنی خوش تھی، گھر آتے ہی اچانک اس پر اتنی ہی اداسی طاری ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ دائمی نہیں تھا بلکہ ایک خواب کی طرح تھا جو نیند ٹوٹتے ہی نیند کے ساتھ غائب ہو جانا تھا۔ بس دیکھنے والی بات یہ تھی کہ نیند کا دورانیہ کتنا طویل ہوتا ہے، اور پھر جب یہ طے ہو کہ اس خواب کو بکھر ہی جانا ہے تو وہ جتنا طویل ہوگا اتنی تکلیف دے گا ٹوٹنے پر۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں جانے کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی کہ تبھی سردارہ نے آ کر ریاض غفار کے بلانے کا بتایا تو وہ ایک دم چونک اٹھی۔ وہ گھر بھی آ گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ نوکرانی کو تم چلو میں آتی ہوں کہہ کر تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر بال ہاتھوں سے ٹھیک کرتی جب وہ نیچے کامن میں پہنچی تو سب کو وہیں ٹی وی کے سامنے براجمان پایا۔ اسے دیکھتے ہی شگفتہ غفار کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات مزید گہرے ہو گئے۔ رومیلا کچھ پریشان ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ سب سے پہلا خیال یہی آیا جانے اس سے کیا غلطی ہو گئی، یا پھر ابرار بھائی نے ان سے کچھ کہہ دیا۔ وہ سلام کر کے منتظر نظروں سے ریاض غفار کو دیکھنے لگی، جن کی سمجھ میں شاید یہ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ آخر وہ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے رک رک کر کہنے لگے، کل بریرہ اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی ہے، حامد تو 2 دن رہ کر چلا جائے گا مگر نانی اماں ساتھ آ رہی ہیں اور وہ کافی دن رکیں گی۔ وہ کہہ کر ایک دم خاموش ہو گئے۔ رومیلا سمجھ ہی گئی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تبھی تو شگفتہ غفار کے چہرے پر اتنی ناگواری پھیلی ہے کیونکہ آلیان اور رومیلا کو ان کے سامنے خوشحال میاں بیوی کے طور پر رہنا ہوگا، جو کہ شگفتہ غفار کے لیے نہایت مشکل صورتحال ہوگی۔ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے بریرہ کے سسرال پر کوئی برا تاثر پڑے۔ ریاض غفار اپنی بات کہہ کر آلیان کو دیکھنے لگے تو آلیان ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے فوراً بولا، رومیلا سمجھ گئی ہے ڈیڈی، آپ فکر مت کریں۔ آلیان تو اس کے آنے سے پہلے ہی یہ بات کہہ سکتا تھا، مگر شگفتہ غفار کے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ انہیں اگر بھنک بھی پڑ جاتی کہ آلیان اور رومیلا کے بیچ کوئی بات چیت ہے تو وہ ابرار کی ساری دھمکیوں کو بھول بھال کر رومیلا کو لتاڑ کر رکھ دیتی۔ اس لیے جب اس نے ان سب کی آمد کے متعلق سنا تو اس نے خود ہی ریاض غفار کو مشورہ دیا کہ آپ رومیلا کو بلا کر سمجھا دیں کہ اسے ان سب کے سامنے کس طرح رہنا ہے۔ اس کا یہ اجنبیوں والا انداز نانی اماں تو کیا خود حامد کو بھی مشکوک کر دے گا، ان لوگوں پر کچھ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ شگفتہ غفار آلیان کی بات پر بپھر گئی، مگر خود انہیں بھی پتا تھا کہ آلیان ٹھیک کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ اعتراض نہ کر سکیں اور محض بڑبڑا کر رہ گئی۔ ریاض غفار آلیان کی یقین دہانی پر فوراً وہاں سے اٹھ گئے تو آلیان بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رومیلا بھی جانے کے لیے پلٹ گئی مگر شگفتہ غفار کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سنو لڑکی، نانی اماں اور حامد کا بہانہ بنا کر کے آلیان کے سر پر منڈلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اس کے نام سے مخاطب کرنا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔
रोमेला पलट कर कुछ हैरानी से उन्हें देखने लगी, जो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोल रही थी। हो सकता है आलियान तुम्हें अपने कमरे में रहने के लिए कहे, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नानी अम्मा और हामिद सब जल्दी सो जाने वाले लोग हैं। उनके अपने अपने कमरों में चले जाने के बाद तुम आलियान के कमरे में जाती हो या किसी दूसरे कमरे में, इसकी उन्हें कानों कान खबर नहीं होगी। हाँ, बशर्त ये कि तुम इस बात को जाहिर ना करना चाहो तो। रोमेला जख्मी नज़रों से उन्हें देखने लगी। उसे तो ख्याल भी नहीं आया था आलियान के कमरे में जाकर सोने का। उसे खुद भी इल्म था इतने बड़े घर में हामिद और नानी अम्मा को भला क्या अंदाज़ा होगा कि वो कौन से कमरे में मौजूद है और उसे कौन से कमरे में मौजूद होना चाहिए। मगर शगुफ्ता गफ़ार के जहन में ये बात घर कर चुकी थी कि रोमेला उनके बेटे को फंसाने की कोशिशों में सरगर्दा है, लिहाजा वो इस मौका को हाथ से जाने नहीं देगी। रोमेला तासुफ भरी नज़रों से उन्हें देखती रह गई, मगर वो अपनी बात कहकर उसके एहसासात महसूस कर लेने के बावजूद गर्दन अकड़ाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन रोमेला तो तैयार होकर यूनिवर्सिटी चली गई। उन लोगों को दोपहर तक आना था। उसे घर में बैठने की कतई ज़रूरत नहीं थी। शगुफ्ता गफ़ार अपनी बेटी के लिए खुद अपने हाथों से उसकी पसंद के खाने बनाना चाहती थी। चुनांचे रोमेला को छुट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी उसे अंदाज़ा हुआ था कि उसकी पढ़ाई शुरू होने पर शगुफ्ता गफ़ार खुश है। शायद इसलिए आलिया ने इतनी आसानी से उसके लिए ड्राइवर और गाड़ी तक अरेंज कर दी कि वो खुद चाहती थी कि रोमेला हर वक्त घर में रहने के बजाय घर से निकल जाए। उसे घर में अकेला छोड़कर अपनी पार्टीज़ में जाना उन्हें कुछ बेचैन सा रखता था। वो खुद 4 साढ़े 4 बजे तक घर से बाहर रहने लगी तो उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। तभी उन्होंने कभी उसके आने जाने पर कोई तंज का तीर नहीं चलाया। लिहाजा रोमेला घर पर रुककर उनकी खुशी गारत नहीं करना चाहती थी, जो सुबह से मुलाजमों को हदायतें देती फिर रही थी कि बरीरा का कमरा ठीक कर दो, बरीरा का बाथरूम अच्छी तरह धो दो, बरीरा को गाजर का हलवा पसंद है, सरदारा गाजरें कश करके मुझे दे दो, मैं चढ़ा दूँ फिर तुम भून देना। उनके हर अंदाज से बेपाया खुशी झलक रही थी। उनके चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था कि वो कभी नफरत से किसी को देख भी सकती हैं। इस वक्त वो सिर्फ ममता के जज्बात से चूर हो रही थी। रोमेला की पलकें भीगने लगीं तो वो वक्त से पहले यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। उस पल उसे सही मानों में बरीरा पर रश्क आ रहा था। वो किस्मत से नाला नहीं होना चाहती थी, लेकिन सीने में भरता धुआं बार बार उसकी आंखें जलाने लगता। सारा दिन यूनिवर्सिटी में भी वो उन दोनों माँ बेटी के बारे में ही सोचती रही। यकीनन उधर बरीरा भी माँ के घर आने की खुशी में ऐसे ही बोलाए बोलाए फिर रही होगी। सुंबल बुखार की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, वरना शायद वही उसका ध्यान बटा देती। उसने खुद को लेक्चर्स में महव करना चाहा, मगर कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। उस दिन वो जानबूझकर देर से घर पहुंची, क्योंकि उसका दिल नहीं चाह रहा था शगुफ्ता गफ़ार के साथ साथ बरीरा की भी चुभती हुई नज़रें बर्दाश्त करे। लेकिन आखिर कब तक फरार हासिल कर सकती थी। 5:15 बजे जब वो घर में दाखिल हुई तो वह सब लॉन में कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। आलियान और रियाज गफ़ार दोनों बरीरा की वजह से आज जल्दी आ गए थे। उसने नज़दीक आकर बगैर किसी की जानिब देखे अपना बैग एक खाली कुर्सी पर रखते हुए सलाम कर दिया। इतने लोगों की बैठक में वैसे भी इज्तिमाई सलाम किया जाता है और उसने जानबूझकर किया था ताकि शगुफ्ता गफ़ार और बरीरा के तासुरात ना देखने पड़े। नानी अम्मा, रियाज गफ़ार और हामिद ने आगे पीछे उसके सवाल का जवाब दे दिया तो उसका भरम रह गया। जब वह बैग कुर्सी पर रखकर पलटी तो नानी अम्मा ने उसकी जानिब बाहें फैला दी। वह एकदम शर्मिंदा होती उनकी जानिब बढ़ गई। उन्होंने बड़े वालेहाना अंदाज में उसे खुद से लगाया और उसका माथा चूमकर उसकी खैर खैरियत पूछने लगी। रोमेला का मूड खुद ब खुद खुशगवार हो गया। तबीयत पर छाया बोझलपन कदरे कम हुआ तो वो कुछ देर सबके साथ वहीं बैठी रही। फिर मगरिब की अजान होने पर सभी वहां से उठ गए। नानी अम्मा जल्दी खाना खाकर सोने की आदी थी, लिहाजा उन्हें मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद खाना दे दिया गया था ताकि वो ईशा के बाद सो जाएं। अलबत्ता हामिद, बरीरा और शगुफ्ता गफ़ार बाजार के लिए निकल गए। हामिद को बहनों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और हामिद के पास बस कल का दिन था। परसों सुबह सुबह उसे चले जाना था और ये बात तो रोमेला को पहले से पता थी कि शगुफ्ता गफ़ार और बरीरा में से कोई भी उसे चलने के लिए हरगिज़ नहीं कहेगा। लिहाजा उनके बगैर पूछे चले जाने पर उसे कोई सदमा नहीं हुआ। रियाज गफ़ार अपने कमरे में चले गए थे तो वह अपनी किताबें लिए लॉन में आ बैठी। उसे पढ़ाई पर तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत थी। पिछले कई हफ्तों से उसकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी और पिछले कुछ दिनों से वो खासी मेहनत भी कर रही थी, लेकिन आज तो वो सिर्फ किताब खोलकर उस पर नज़रें जमाए बैठी थी, जबकि जहन कहीं और परवाज़ कर रहा था और किसी एक नुक्ता पर टिक भी नहीं रहा था। अब लामतनाही सोचों का सैलाब जो उमड़ चला आ रहा था, मगर एकदम किसी ने उस पर बंद बांध दिया। रोमेला ने बुरी तरह चौंक कर अपने सामने आई चीज़ की तरफ देखा। वो एक रोल किया हुआ अखबार था। इस अखबार को देखते हुए रोमेला की नज़रें खुद ब खुद अखबार को थामे हाथ और हाथ से होती आलियान के चेहरे पर जा ठहरी। दिखाना तो तुम्हें सुबह में ही चाहता था, मगर मौका नहीं मिला। आलियान ने खुद ही रोल किया अखबार खोलकर एक सफ़ा उसके सामने कर दिया।
रमीला उलझन भरी नजरों से अखबार की सुर्खी को देखने लगी जहां चंद मुलजिमान की गिरफ्तारी की खबर लगी थी। ये क्या है? रमीला ने सिर्फ सुर्खी पढ़ने के बाद अखबार हाथ में लिए बगैर बोरियत भरे लहजे में पूछा। ये गुलफाम और मिर्जा साहब हैं, साथ में वो गुलफाम भी जो कनाडा में मुकीम है। रमीला एक बार फिर बुरी तरह चौंक उठी। अब की बार वो बेइख्तियार अखबार हाथ में लेकर तस्वीर पर गौर करने लगी। उसने मिर्जा साहब और उनके बेटे गुलफाम को इतनी बार देखा ही नहीं था कि एक नज़र में पहचान पाती। हाँ, अलबत्ता अब गौर करने पर वो दोनों शक्लें उसे याद आ गई। उनके साथ दो लोग और भी खड़े थे। एक थोड़ा बूढ़ा सा आदमी था, जबकि एक ना सिर्फ नौजवान था बल्कि खासी अच्छी शक्लो सूरत का मालिक था। ये वो गुलफाम है जिसे कनाडा में नमल ऑफिस जाकर मिली थी, और ये बुढ़ा जो तुम लोगों के सामने कभी नहीं आया, इनके गैंग का लीडर है। किसे लूटना है, कब लूटना है, कैसे लूटना है, ये सब यही प्लान करता है। आलिया ने एक कुर्सी खींचकर उसके करीब रखी, दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम लोग पहले लोग नहीं हो जो इनके धोखे के शिकार बने। इन्होंने बहुत लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। पाकिस्तान में मुकीम गुलफाम, जिसका असल नाम कामरान है, शादी करके लड़कियों को कनाडा ले जाता है और वहां उन दोनों के पास छोड़कर कुछ दिनों के लिए रोपोश हो जाता है। ये लोग उस लड़की को कुछ महीने हफ्सा बेजा में रखते हैं और उससे गलत काम कराते हैं, और जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और वापस घर जाने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि अब घर वाले भी उसे कबूल नहीं करेंगे, उल्टा घर वालों को उसकी वजह से बदनामी का सामना करना पड़ेगा, तब ये दोनों इन लड़कियों को आगे बेच देते हैं। यूँ समझ लो ये लोग बहुत छोटे पैमाने पर काम करते हैं। आगे जो गैंग है जिन्हें ये लड़कियां सप्लाई करते हैं, उन तक तो कनाडा की हुकूमत भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली हैं। उन्हें लड़कियों के सर पर बंदूक रखकर कुछ नहीं कराना होता। उनके पास लड़की ट्रेंड होकर आती है। वो पसे पर्दा रहकर सिर्फ हदायतें देते हैं कि उसे कब और कहाँ जाना है। इस काम का भत्ता इलाके की पुलिस को भी दिया जाता है ताकि वो खामोशी से उन्हें अपना काम करने दे। अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी वो लोग भी पकड़े जाएंगे, लेकिन फिलहाल इन चारों के छूटने की कोई उम्मीद नहीं। रमीला सुन बैठी आलियान को सुन रही थी। वो खबर पढ़ना चाहती थी, लेकिन आंखों में इतनी धुंध जमा हो गई थी कि सारे अल्फाज गड़बड़ हो गए। उसके हाथ कांप रहे थे। अखबार पर गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई थी कि किनारों से अखबार बिल्कुल चुरमुरा गया। उसके होंठ लर्ज रहे थे, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। जो कुछ उसने सुना था वो मामूली बात नहीं थी। ये सब उसके साथ हो सकता था, होने वाला था, लेकिन उस पाक ज़ात ने जब अर्श बनाया था तो उस पर लिख दिया था कि वो अपने बंदों पर हमेशा रहीम रहेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ उसका रहम था कि वो इस अजाब में मुब्तला होने से बच गई थी। ज़ाहिरी असबाब में भले ही सब नमल ने किया था, मगर नमल को अल्लाह ताला ने चुना था इस सादत के लिए, वरना बशर की क्या बिसात के वो इरादा करे और अमल कर सके। उसके दिल में अगर ख्याल भी आता है तो वो अल्लाह ताला डालता है, वरना अगर रमीला के नसीब में ये तबाही लिखी होती तो नमल कनाडा जाकर उस शख्स से मिलने का इरादा भी नहीं करती। कैसे बाल बाल बचाया था उस रहीम करीम ज़ात ने उसे, वरना आज पता नहीं वो कहाँ होती। खौफ और एहसास तशक्कुर से रमीला की हालत अजीब हो गई थी। बेफिक्र रहो, ये लोग अब बाहर नहीं आएंगे, और जो लोग इनके पीछे हैं वो ये नहीं जानते कि ये सब किसने किया है। मैंने खुद मंजर पर आए बगैर बहुत ही खुफिया तरीके से अपने ज़राए इस्तेमाल किए हैं ताकि मेरे ज़रिए तुम और तुम्हारे ज़रिए नमल तक कोई ताने बाने बुनता पहुंच ना सके। आलियन समझा वो खौफजदा हो रही है, तभी उसने तसल्ली दी। वो उसकी गलत फहमी दूर करना चाहती थी, मगर इस काबिल ही नहीं थी कि कुछ बोल पाती। कुछ कहने की कोशिश में वो एकदम ही रो पड़ी तो आलिया ने उसके हाथ से अखबार लेते हुए गैर इरादी तौर पर उसका हाथ थाम लिया। रिलैक्स यार, तुम अब बिल्कुल महफूज हो। पता नहीं अबरार ने क्या देखकर शादी तय की थी। ये लोग आमतौर पर ऐसे घरों को टारगेट करते हैं जहां लड़कियों की लाइन लगी होती है। घर में बाप भाई नहीं होते जो ढंग से मालूमात कर सकें। बस बाहर का रिश्ता सुनकर बीवी माँ जल्द से जल्द लड़की को अपने घर का करने के चक्कर में उसके सर से चादर ही खींच लेती है। ये बाप बेटा कुछ अरसे किसी नई जगह पर बिजनेस या जॉब करने, थोड़ा पैसा कमाने के साथ साथ थोड़े ताल्लुकात पैदा करते हैं और फिर किसी शिकार को ढूंढकर पूरा जाल बिछाते हैं। इसी कार्रवाई के दौरान इनकी इब्रार से मुलाकात हो गई और इन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये शख्स बगैर किसी मालूमात के रिश्ता दे देगा। आलियन हाथ में अखबार पकड़े उन लोगों की तस्वीरें देखने लगा जिनके चेहरे बिल्कुल साफ सुथरे थे। कोई खबासत और किसी किस्म की मकारी उनके चेहरों से नहीं झलक रही थी, लेकिन अंदर से वो लोग कितने स्याह और कितने गलीज थे ये अब बहुत लोग जानते थे। रमीला रोते रोते आंसू भरी आंखें उठाकर उसे देखने लगी। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग बाहर आकर तुमसे बदला नहीं लेंगे? आलिया ने उसके देखने को कुछ और ही समझा। अव्वल तो ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा होता भी है तो क्या हर शख्स ये सोचकर खामोश हो जाए कि उनसे बदला लेकर उनसे दुश्मनी हो जाएगी तो उन्हें उनके अंजाम तक कौन पहुंचाएगा? किसी को तो आगे बढ़ना होगा ना।
इन जराइम की रोकथाम के लिए। जो लोग इनका निशाना बन जाते हैं वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते, और जो बच जाते हैं वो अपनी आइंदा ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए इनसे उलझना नहीं चाहते। तो फिर आखिर इस मसले का हल क्या है? खैर तुम बेफिक्र रहो, मैंने कहा ना, तुम पर या नमल पर शक तक नहीं कर सकता कोई। मैं खुद नहीं चाहता कि ये लोग अगर जेल से निकल आए या इनकी गैंग का कोई दूसरा आदमी तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाए। आलियान बड़े सुकून से रसानी भरे लहजे में उसे समझा रहा था। रमेला को ये फिक्र तो थी ही नहीं कि ये लोग उससे बदला ले सकेंगे या नहीं। वो तो अल्लाह के हजूर शुक्राने के आंसू बहा रही थी, जिसने किसी तरह उसकी नामोस की हिफाजत की थी और उसे उन शैतान सिफ्त लोगों से बचाकर आलियान जैसे शख्स की पनाह में दे दिया, जिसकी अपनी बहन एक नाकर्दा गुनाह की पादाश में अपना ज़हनी सुकून गंवा बैठी थी। शायद इसीलिए उसके दिल में उन औरतों के लिए इतना दर्द था जो उन लोगों के हत्थे चढ़ चुकी थी, और इसीलिए वो उन लोगों को सलाखों के पीछे करने के लिए इस कदर सरगर्म अमल रहा कि इतनी जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो गया। रोमेला बेख्तियार अकीदत भरी नज़रों से आलियान को देखी गई, जो उसके जज्बात से बेखबर मजीद कह रहा था, अच्छा एक बात का ख्याल रखना, इनकी गिरफ्तारी की खबर तो सारे शहर को हो चुकी होगी, लेकिन किसी को ये मत बताना कि ये सब मैंने किया है। नमल को छोड़कर, क्योंकि वो काफ़ी समझदार है, लेकिन अबरार से कुछ मत कहना, और ना ही ऐसे किसी शख्स से जिसके ज़रिए अबरार तक ये बात पहुंचने का खतरा हो। क्यों? रोमेला बेसाख्ता बोली। उसके ख्याल में तो सबसे पहले अबरार को ही बताना चाहिए था कि उसका फैसला किस कदर गलत था। उसने तो अपनी बहन को खाई में धकेल दिया था। क्यों, क्या करेगा वो जानकर? आलिया ने उल्टा उसी से पूछा। आपने इतनी मेहनत? मैंने ये सारी मेहनत उसे दिखाने के लिए नहीं की। जिस मकसद से की थी वो पूरा हो गया, यानी कि ऐसे लोगों को माशरे में रहने का कोई हक नहीं। आलिया ने रोमेला की बात काट दी, फिर उसे समझाते हुए कहने लगा, अबरार बिल्कुल भी समझदार इंसान नहीं है। वो सिर्फ एक अनापरस्त और ज़िद्दी शख्स है। वो कोई काम किसी की भलाई के लिए नहीं करता। जब उसे पता चला था कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे उसी वक्त उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, जबकि वो ये सब करने की बजाय उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में जुट गया। और फिर इस कोशिश में उसने उन्हीं लोगों का रास्ता अपना लिया, यानी लड़की का अगवा। और इसके बदले में उसने मांगा क्या? अपनी बहन की सेफ्टी या उसका करियर? नहीं, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या सलूक हो रहा है। उसे उन लोगों पर साबित करना था कि वो 2 दिन में अपनी बहन की शादी कर सकता है, सो उसने कर दी। इसीलिए मैं उसे बताने से मना कर रहा हूँ। ये जानने के बाद कि ये सब मैंने किया है, वो शर्मिंदा हरगिज़ नहीं होगा कि ये तो भाई होने की हैसियत से उसे करना चाहिए था, बल्कि वो जेल में गुलफाम से मिलने जाएगा और उसे चिढ़ाएगा कि ये सब उसने किया है। बिला वजह उसके डायलॉग बोलकर इतराएगा और गुलफाम उससे बदला लेने के लिए भड़क उठेगा। वो अगर खुद बाहर नहीं भी आ सका तो भी अपने किसी आदमी के जरिए अबरार को नुकसान पहुंचा सकता है, और वो तो है ही एक कमीना इंसान, लिहाजा वो भी अबरार की तरह उसकी बहन पर ही वार करेगा। रोमेला उसकी बातों की कायल होने के साथ साथ बुरी तरह शर्मिंदा भी हो गई और सफाई देने वाले अंदाज में कहने लगी, अबरार भाई एक अनापरस्त इंसान ज़रूर हैं, मगर वो कोई मुजरिम पेशा नहीं है। बरीरा को अगवा? मैं जानता हूँ। आलिया ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। जब मैं गुलफाम के बारे में इतना कुछ पता कर सकता हूँ तो क्या अबरार की मालूमात नहीं करा सकता? आलिया ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, फिर एकदम संजीदा होते हुए कहने लगा, देखो रोमेला, कुछ लोग मजबूरी में जराइम करते हैं और कुछ लोग फितरतन मुजरिम होते हैं। मुझे मालूम है इसमें बरीरा को कोई तकलीफ नहीं दी गई, बल्कि बड़ी इज्जत से रखा, लेकिन उसकी फितरत में सरकशी मौजूद है। अगर उसका काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा होगा तो वो उसे फ़ौरन गलत तरीके से कर लेगा। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं और उन्हें मुजरिम ही कहा जाता है। आलियान के गंभीर लहजे पर रोमेला उसे देखती रही, फिर बहुत ठहर ठहर कर पूछने लगी, तो क्या आप अबरार भाई से भी बदला लेंगे? रोमेला के सवाल पर आलियान खामोशी से उसे देखने लगा। वो उसका जवाब जानने के लिए जितनी बेचैन थी, आलियान की खामोशी उतनी ही तवील हो रही थी। कितनी देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे कि अचानक गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो उन दोनों की तवज्जो गेट की जानिब हो गई। चौकीदार की गेट खोलने पर 4 व्हील अंदर दाखिल हो गई। शगुफ्ता, गफार, हामिद और बरीरा के साथ शॉपिंग से लौट आई थी। रोमेला 4 व्हील को पोर्च में दाखिल होता देखकर अपनी जगह से फौरन उठ गई। इससे पहले कि शगुफ्ता गफार की नज़र उस पर पड़ती, वो जल्द से जल्द अंदर भाग जाना चाहती थी, मगर वो अपनी जगह से एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि झटके से रुक गई। उसका हाथ आलियान के हाथ में था, जिसे शगुफ्ता गफार के आ जाने पर भी आलियान ने छोड़ा नहीं था। रोमेला शदीद हैरानी से उसे देखने लगी, जो यकटुक उसे ही देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आलियान ने उसका हाथ क्यों पकड़ रखा था, और अगर पकड़ा भी था तो अब शगुफ्ता गफार के आ जाने पर छोड़ क्यों नहीं देता। मगर वो इतनी घबराई हुई थी कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो आलियान पर से नजरें हटाकर गाड़ी की तरफ देखने लगी, जो पोर्च से गुजरकर घर के दरवाजे के सामने रुक गई थी।
سب سے پہلے اس میں سے حامد اترا تھا، اس کے بعد شاپرز سے لدی پھندی بریدہ اور پھر شگفتہ غفار کی باری تھی۔ رومیلا کی گھبراہٹ سوا ہو گئی تھی، مگر عالیہ تھا کہ اس کی حالت سمجھنے کے باوجود اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔